السلام علیکم۔ آج 3 نومبر 2021 کے دن شام افسانچہ کی دوسری آن لائن نشست میں آپ کا استقبال ہے۔ اس نشست کا انعقاد ماہنامہ الفاظ ہند کامٹی اور کل ہند افسانہ نگار فورم کی جانب سے کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد افسانچوں کی ترویج و ترقی ہے۔ اس کے پس پشت انور مرزا صاحب اور ریحان کوثر صاحب کی کوششیں کار فرما ہیں۔ انور مرزا صاحب کل ہند افسانہ نگار فورم کے بانی ہیں اور ریحان کوثر صاحب الفاظ ہند کامٹی کے مدیر ہیں۔ ریحان کوثر صاحب کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ آپ کے افسانچوں کا مجموعہ 100 لفظوں کے 100 کہانیاں حال ہی میں منظر عام پر آ چکا ہے۔ آپ دونوں حضرات اس نشست میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس نشست کی صدارت جناب نثار انجم فرمائیں گے۔ آپ کا تعلق مغربی بنگال سے ہے۔ آپ درس و تدریس کے پیشے سے وابستہ ہیں۔ آپ ایک کوہنہ مشق افسانہ نگار اور ایک بہترین مبصر ہیں۔ آئیے آج کے پروگرام کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ آج کی نشست میں 2 سیشن ہوں گے۔ ہر سیشن میں افسانہ نگار اپنا ایک ایک افسانچہ سنائیں گے۔ ہر سیشن کے اختتام پر صدر محترم پیش کیے گئے افسانچوں پر ہمیں اپنے تاثرات سے نوازیں گے، لیکن اس سے پہلے حسب دستور اراکین کو بھی اپنے تاثرات پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ آج کے افسانہ نگار ہیں جناب خالد بشیر تلگامی، ڈاکٹر انیس رشید خان صاحب، رخسانہ نازنین صاحبہ اور قیوم اثر صاحب۔ افسانچے بھی اسی ترتیب سے پیش کیے جائیں گے اور پھر انور مرزا صاحب کے اظہار تشکر کے ساتھ یہ نشست پایہ تکمیل تک پہنچے گی۔ اس نشست میں سنائے جانے والے سارے افسانچے کل ہند افسانہ نگار فورم میں کبھی نہ کبھی پیش کیے جا چکے ہیں۔ اب آئیے افسانچہ سننے کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ہمارے درمیان جناب خالد بشیر تلگامی موجود ہیں۔ آپ کا تعلق تلگام کشمیر سے ہے۔ آپ درس و تدریس کے پیشے سے وابستہ ہیں۔ آپ کے افسانچوں کا مجموعہ رگ ہے۔ تلگامی صاحب افسانچہ سنائیں۔ محفل میں شریک تمام معتبر ممبران کو میری طرف سے السلام علیکم۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ افسانچہ کو آخر وہ مقام مل ہی گیا جس کا خواب سعادت حسن منٹو اور جوگندر پال جی نے برسوں پہلے دیکھا تھا۔ افسانچہ کو اس مقام پر پہنچانے میں بہت سارے اہل قلم کا ہاتھ ہے، مگر آج کے دور میں اگر میں بات کروں تو محترم انور مرزا صاحب اور محترم ریحان کوثر صاحب کا کام واقعی قابل ستائش ہے۔ آپ دونوں کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں مدعو کیا۔ صدر محفل کی اجازت سے میں اپنا افسانچہ پیش کر رہا ہوں جس کا عنوان ہے بھول۔ بھول بھول جی۔ صبح نیند کھلتے ہی مجھے اپنے ہمسایہ سلمان صاحب کے گھر سے ان کی بیوی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ میرے ان سے اچھے مراسم تھے۔ جا کر دیکھا تو سلمان صاحب اپنی اہلیہ کو زور سے پیٹ رہے تھے۔ میں نے بڑی مشکل سے ان کی بیوی کو بچایا اور مارنے کی وجہ پوچھی۔ گزشتہ شب کو ہم شادی کی تقریب میں مدعو تھے، وہاں اس نے میری عزت نیلام کر دی اور میرے منع کرنے کے باوجود اس بے حیا نے میری بات نہیں مانی، کہتے ہوئے وہ رو پڑے۔ پھر انہوں نے اپنے جیب سے موبائل نکالا اور فیس بک پر اپنی بیوی کا ڈانس والا ویڈیو دکھانے لگے اور میں کمرے میں کھڑا سوچ رہا تھا بھول کس کی تھی۔ شکریہ۔ واہ 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 واہ، بہت خوب، بہت خوب۔ اب میں دعوت دے رہا ہوں ڈاکٹر انیس رشید خان صاحب کو۔ آپ کا تعلق امراوتی مہاراشٹر سے ہے۔ آپ درس و تدریس کے پیشے سے وابستہ ہیں۔ آپ کے سائنسی مضامین شائع ہوتے رہے ہیں۔
साइंसी मजमून पर आपकी एक किताब सितारों से आगे भी शाये हो चुकी है। उर्दू अदब में अफसाने और अफसानचे लिखना पसंद करते हैं जी डॉक्टर अनीस रशीद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खुशी हो रही है आज इस महफिल का एक हिस्सा बनकर। चलिए मैं अपना पहला जो अफसानचा है आज के इस पहले राउंड में मैं पेश करने जा रहा हूँ। इस अफसानचे का उन्वान है खजूर का पेड़। इस्लामिक स्टडीज के प्रोफेसर रह चुके 70 साला मिर्जा मुमताज बेग उस वक्त अपने पोते शहरयार के लैपटॉप पर उसकी स्पेन ट्रिप की तस्वीर और वीडियोस देख रहे थे। शहरयार हर एक की तफसीलात उन्हें बता रहा था। एक तस्वीर पर उन्होंने उसे रोक दिया और गौर से उस तस्वीर में कुछ देखने लगे। क्या चीज नजर आ गई दादा जान? मैं उसे आपको जूम करके बताता हूँ, शहरयार ने पूछा। बेटा इसे जूम करो, उन्होंने स्क्रीन पर एक जगह उंगली रखकर कहा। जी दादा जान, ये देखिए, ये खजूर का एक पेड़ है। उस इलाके में बहुत सारे खजूर के पेड़ थे, बड़े ही खूबसूरत, लेकिन उनकी खजूरें खा नहीं पाया। वैसे सच कहूं तो वहां इस बात का ख्याल भी नहीं आया था कि उनकी खजूरें खानी चाहिए। उसने हंसकर आम फहम अंदाज में कहा था, लेकिन दादाजान के चेहरे पर छाई संजीदगी ने उसे भी संजीदा कर दिया। क्या बात है दादाजान, आप क्या सोच रहे हैं? उसने गौर से उनकी नम होती हुई आंखों में झांक कर पूछा। बेटा, तुमने गौर किया, ये खजूर के पेड़ ये तो अरब ममालिक में पाए जाते हैं, फिर ये यूरोप की जमीन पर कैसे उग गए? उनकी आवाज भर्राने लगी थी। हाँ दादाजान, वो तो सबको मालूम है ना, अरबों ने स्पेन पर तकरीबन 700 साल तक हुकूमत की थी। उसी जमाने में ये खजूर के पेड़ वहां उगाए होंगे। उसने गौर से उन्हें देखते हुए जवाब दिया। हाँ बेटा, जानते हो, जब स्पेन में अरबों की हुकूमत कायम हो गई, तब उन अरबों को अपने इलाके के पेड़ पौधों की याद आने लगी। उन्हीं लोगों ने वहां उन खजूर के पेड़ों को लगाया था ताकि उन्हें पेड़ों के खूबसूरत नज़ारे दिखाई दे और उनके दिलों को सुकून मिल सके। दादाजान खामोश हुए और रूमाल से आंखें साफ करने लगे। फिर आहिस्ता से कहना शुरू किया, बेटा जरा गौर करो, खजूर के ये पेड़ आज तक उस इलाके में इस्लाम की तारीख बयान कर रहे हैं। ये पेड़ आज तक बाकी हैं क्योंकि इनकी जड़ें बहुत गहरी और मजबूत हैं। और आज वहां, दादाजान की आवाज भर्रा गई। वो आगे कुछ भी कह नहीं पाए, सिर्फ आंखों में उमड़ उमड़ कर आने वाले आंसुओं को पोंछते रहे। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब, बहुत पेड़ पेड़ बाकी रह गए इसलिए कि जड़ें मजबूत थी, गहरी थी, लोग बाकी नहीं रहे। वाह, बहुत खूब। अब मैं दावत दे रहा हूँ रुखसाना नाजरीन साहिबा को। आपका ताल्लुक बीदर कर्नाटक से है। आप एक खातून खाना हैं, तवील अरसे से अफसाने लिख रही हैं। आपके अफसाने और अफसानचे रसायल और जरायद में शाया होते रहते हैं। जी मोहतरमा रुखसाना नाजरीन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। मैं मोहतरम अनवर मिर्ज़ा साहब और मोहतरम रेहान कौसर साहब की ममनून और मशकूर हूँ कि मुझे शाम में अफसानचा का एक हिस्सा बनाया गया। आप तमाम अहबाब की भी शुक्रगुजार हूँ कि मेरे अफसानचों को वक्त देकर आप सब सुन रहे हैं और इस पर अपने तासुरात का इजहार भी फरमाएंगे। तो अफसानचा हाजिर खिदमत है। कुफर तोड़। जी कुफर तोड़। ऊपर तोड़। जलसा गाह में तिल धरने को जगह न थी। नाज़िम जलसा ने इस्तकबालिया कलमात की अदायगी के बाद कहा,
IAS में हमारे सूबे में पहली बार एक लड़की ने इम्तियाजी कामयाबी हासिल की है। मैं वज़ीर तालीम जनाब अनवर खां साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो इस ज़हीन लड़की को गोल्ड मेडल से नवाजें। तालियों की गूंज के दौरान वज़ीर तालीम ने शाजिया को गोल्ड मेडल से नवाजा और शफकत से पूछा, बेटी, एक छोटे से शहर में तुम्हें आला तालीम की तहरीक कैसे मिली? सर, अल्लाह ताला का फजल करम रहा। मेरे दादा जान की ख्वाहिश थी कि मैं कलेक्टर बनूं, इसीलिए मैंने उनके ख्वाब को हकीकत में बदलने की कोशिश की। अगर आप चाहें तो मैं इन्हें स्टेज पर बुलवा लूं। शाजिया के लहजे से अकीदत बरस रही थी। हाँ ज़रूर दादा जान, प्लीज़ स्टेज पर तशरीफ़ लाइए। और फिर एक बार बुजुर्ग स्टेज की तरफ बढ़े तो वज़ीर तालीम की आंखों में शनासाई की चमक लहराई और फिर वो करीब आए तो बेसाख्ता उन्होंने इनका हाथ थाम लिया। सर, आपको याद है मैं बीदर के हाई स्कूल में आपका शागिर्द रह चुका हूँ। पढ़ाई में कमज़ोर होने के सबब अक्सर आपके हाथों पिटाई हुआ करती थी। ये सुनकर मोहम्मद हुसैन के चेहरे पर शफकत भरी मुस्कुराहट दौड़ गई। वज़ीर तालीम अनवर खां साहब ने माइक संभाला और कहा, आज मुझे दोहरी खुशी हो रही है। मेरे शहर की एक लड़की ने IAS में शानदार कामयाबी हासिल करके मेरे शहर का नाम रोशन किया और इस लड़की के दादा जान मेरे उस्ताद मोहतरम हेड मास्टर मोहम्मद हुसैन साहब से मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ, जिनके सख्त गिर मिजाज की वजह से उन्हें कुफ्र तोड़ के लक़ब से नवाजा गया था। मुझे फ़ख्र है कि मैं उनका शागिर्द रहा हूँ। हाल में एक बार फिर तालियों का शोर गूंज उठा था और मोहम्मद हुसैन साहब की आंखें भीग रही थीं। शुक्रिया। वाह, बहुत खूब। वाह 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 वाह, बहुत बहुत खूब। ये थी बहुत अच्छी। मोहतरमा रुखसाना नाज़रीन साहबा। मोहतरम मोहम्मद सिराज अजीम साहब निशस्त में शामिल हो चुके हैं। आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया। अब मैं दावत दे रहा हूँ तय्यूब असर साहब को। आपका ताल्लुक जलगांव महाराष्ट्र से है। आप दरसो तदरीस के पेशे से वाबस्ता रहे हैं। एक तवील अरसे से अफसाने और अफसानचे लिख रहे हैं। आपकी तख्लीक़ात मुख्तलिफ अखबारात और रसाइल में शाया होती रही हैं। जी तय्यूब असर साहब। आदाब अर्ज़ है। आदावर्स। पहले मैं कुल अफसाना निगार फोरम और अल्फाज हिंद कामटी नागपुर के ज़ेर एहतमाम मुनक़द की गई इस दूसरी ऑनलाइन शाम अफसानचा में मुझे शिरकत का मौका मिला, जिसके लिए मैं मुंतज़मीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे अफसानचे का उन्वान है, ऐसा भी मुमकिन है। जी भाभी, बिलाखिर तुमने बड़ी नादानी कर डाली। सलीमा को फिर उसी बदमाश लड़के के हवाले कर दिया। बच्चे भी हो गए, शर्म आनी चाहिए। ऐसे नाजुक मामलात में चौकन्ना रहने की अशद जरूरत है। कल ये का जरिया बनेंगे, तब हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे? लंदन से 8 साल बाद लौटा जाहिद भाई और भाभी पर लफ्जों के बम बरसाने लगा। क्या करे भाईजान, रिश्तेदारों ने तंग कर दिया था। अजीब अजीब बंधनों में डालना चाहते थे। जाने क्यों मेरे वालिदैन भी उनके तरफदार बन के आए थे। कबीले वाले सारे रिश्ते तोड़ देने की धमकी भी दे रहे थे। आई हुई बूढ़ी औरतें दोनों की जवानी पर रहम खाने की बातें करने लगी थी। हम खौफजदा थे, कहीं बात न बिगड़ जाए, इसलिए तुम्हें खबर तक देना मुनासिब नहीं समझा। जाने दो, अब जो हुआ सो हुआ। भाभी की आंखें डबडबा गई और भाई माथा पीटे जा रहा था। बात न बिगड़ जाए, क्या मतलब? या अभी आए तो जरा सुकून से रहो ना, सुनो तो सही। उन्होंने 2 तलाक का फतवा लाया था, इसलिए तजदीदे निकाह पर जोर देने लगे थे। कहने लगे नासमझी में हो जाता है, गोल मोल की क्या अहमियत है। हम उनके सामने बेबस हो गए थे।
दोनों ज़ारो पतार रोए जा रहे थे। ओहो, तुमने निकाह भी ठुरा लिया, मुझे आने तो देते। जाहिद मियाँ तिलमिलाने लगे। नहीं नहीं भाईजान, यही तो अफसोस है। उन्होंने 2 दिन अपने यहाँ कयाम किया, हमारी किसी ने कुछ नहीं सुनी, सारी हुज्जतें बेसूद हो गई। दूसरे दिन शाम होते ही वो सलीमा को उठा ले गए। हरचंद के सलीमा नाराज थी। कब हासिल था, साल भर बाद सलीमा ने बताया कि निकाह दोहराया गया, ना पहला महर अदा किया गया। बताओ हम कर भी क्या सकते थे। भाभी की आंखें हनूज नम थी, मगर भाभी 3 तलाक तो हमने अपने कानों से सुना था। अल्लाह के हुजूर हम इसके गवाह भी रहेंगे, और सलीमा को इसका इकरार भी था। क्यों चली गई हमारी बच्ची। शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत बहुत खूब, अच्छी, बहुत बहुत खूब। खूब। लेकिन इससे पहले कि मैं जनाब सदर से दरख्वास्त करूं कि इस सेशन में पेश किए गए अफसानचों पर हमें अपने तासुरात से नवाजें, फिलहाल अराकीन से तबसरा सुन लेते हैं। हमारे दरमियान रौनक जमाल साहब मौजूद हैं, मैं आपका इस्तकबाल करता हूं। शुक्रिया। और अब अराकीन से तबसरा सुनने का वक्त है। अराकीन में जो लोग तबसरा पेश करना चाहें उनका इस्तकबाल है। खास तौर से रौनक जमाल साहब, सराज अजीम साहब और भी लोग हैं। जी शुक्रिया। माशाअल्लाह सभी अफसानचे अफसाना निगार ग्रुप में पढ़ने का मौका पहले मिल चुका है, और आज कलमकार की आवाज़ में सुनने का मौका मिला, काफ़ी महसूस हुआ। और माशाअल्लाह सभी अफसानचे एक से बढ़कर एक है। सदर साहब के खुतबे का मैं मुंतज़िर हूँ कि इन अफसानचों के सिलसिले में उनकी क्या राय आती है, उससे बहुत कुछ सीखने मिलेगा इंशाअल्लाह। मैं तमाम शरका को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। जर्रा नवाजी साहब। थैंक यू सर। और किसी मोहम्मद अली साहब, जी सर। मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। जी मैं जी असल में जी देर बिल्कुल से ज्वाइन कर पाया क्योंकि मुझे ये टेक्निकल चीजें आती नहीं हैं। जी लेकिन बहरहाल कोशिश करने के बाद ज्वाइन कर लिया। जी और रशीद साहब का और दूसरे साहिबान का मैं वो अफसानचा नहीं सुन सका, और कयूम असर साहब का अफसानचा सुना। जी तो कयूम भाई को बस मुबारकबाद दे सकता हूँ, और इसके अलावा क्योंकि उनके ऊपर तबसरा करना, उनके अफसानचे के ऊपर तबसरा करना जो है सूरज को चिराग दिखाने के मुताबिक है। बहरहाल तमाम शुरका को बहुत ही मुबारकबाद। मैं लेट इसमें शामिल हुआ, और देखते हैं कि हमारे जो सदर मोहतरम हैं वो क्या बोलते हैं और दूसरे हजरात क्या बोलते हैं। बहरहाल बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत अच्छा ये सिलसिला शुरू हुआ है। अल्लाह ताला इसको दवाम बख्शे। मैं बस ये दुआओं के साथ आमीन आमीन आमीन। जी शुक्रिया। थैंक यू सर। और किसी जानिब से माशाअल्लाह सिलसिला भी अच्छा है सिराज भाई, और आदिल भाई का जो निजामत है काफी जान पैदा कर देती है। आदिल भाई, मोहम्मद अली सिद्दीकी, मोहम्मद अली सिद्दीकी, सॉरी सिद्दीकी साहब का जो अंदाज है ना पेश करने का, और माशाअल्लाह बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से वो। जी नहीं रौनक भाई, पहले उसकी सेशन की रिकॉर्डिंग देखी थी। आज लाइव देख रहा हूँ मैं सिद्दीकी साहब को। माशाल्लाह अच्छा अंदाज है, अच्छे तरीके से। बहुत बहुत मुबारक सिद्दीकी साहब।
जी शुक्रिया वाकई भी मैं भी तहे दिल से सिद्दीकी साहब शुक्रिया आपको मुबारकबाद भी देता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ। शुक्रिया बहुत अच्छा आपका अंदाज है, जी अल्लाह और इसमें इजाफा फरमाए। जी। अब आमीन आमीन। अब मैं जनाब हूँ, इसलिए कि ऑनलाइन तो मैं जनाब सदर की तरफ रुख करूं, अगर कोई और ना हो तो। जी, अब जनाब सदर से दरख्वास्त है कि आप हमें अपने तासुरात से नवाजें। जनाब निसार अंजुम साहब। लफ्जों की तहजीब और इसकी वजह जारी के लिए आली जनाब अनवर मिर्जा साहब और बिरादर अजीजी रेहान कौसर साहब की जितनी तारीफ की जाए कम। हक है समाजी वसाइल की अदबी तारीख पर जब भी बात होगी, अनवर मिर्जा और भाई रेहान कौसर की तस्करा के बगैर अधूरी है। अनवर मिर्जा साहब का तजुर्बा और रेहान भाई की इज्तिमाई वलवला अंगेज तबीयत ने अपने लिए जो मुकाम बनाया है वो काबिल तकलीद है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप दोनों को सलामत रखे। आमीन आमीन आमीन। आमीन। अफसाने का उन्वान है भूल। भूल खालिद बशीर तिलगामी का अफसाना है। मगरबी तहजीब का चांद मशरकी आंगन में तुलू हो चुका है। सालेह रवायत की दीवार ढह रही है, दहलीज टूट रही है। नई नस्ल अब इस मलबे तहजीब पर थिरकने के लिए ताजो सामान जुटा चुका है। मगरबी तहजीब का सूरज बेहयाई की धूप ओढ़े हमारे मुआशरे के सलमान के घर दस्तक दे चुका है। कर लो दुनिया मुट्ठी में बंद के ऐलान के बाद डिजिटल इनकलाब आ चुका है। जिंदगी नया पिराहन ओढ़े हमारे दरमियान है। सरूर अंगेज रक्स में हरी रसीली शहवानियत लम्हों की गागर से टिप टिप बरस रही है और खातून खाना टिप टिप बरसा पानी की धुन पर कुल्हे मटका रही। ऐसे में महरम और नामहरम से बेनियाज स्मार्टफोन की आंख भला क्यों चुप ओढ़े रहती। बेशर्मी की हुक्की हवा अपलोड होकर फेसबुक तक, फिर सारे मोहल्ले में वायरल। साले रवायतों की चादरें उतर रही हैं। अब सवाल ये है कि भूल किसकी है? मशरिक के मकीनों की, वो खिड़की जो मगरिब की तरफ खुलती है, या घर की जीनत को जमा महफिल बनाने वाले मर्द, या फिर डिजिटल अहद का साथ लेता हुआ आपकी निजाम जो रगों में शरारों की तरह उतर रहा है और जिस लम्हे को शहरक से लहू पिलाया जा रहा है। एक अच्छे और अछूते मौजू पर मुबारकबाद। अफसाना वाकया निगारी से आगे निकल नहीं पाया है। खजूर का पेड़। स्पेन की इस्लामी सकाफत का 800 साल तारीख के रगो रेशे से फूटता नॉस्टैल्जिक दर्द है जो खजूर के पेड़ के इस्तिहारे में बयान हुआ है। खजूर की पेड़ की जड़ें जमीन से जुड़ी हुई है, लेकिन एक सुरमई बेकैफी और बेनमकी स्पेन की यादों पर तारी है। एक बेकैफ धुंध इस्लामी सकाफत की सांसों पर काबिज है और एक सरमदी आग की तपिश दादा अपने सीने में महसूस कर रहा है। पुरानी अजमतों के चराग के मुकद्दर अब हाल की खुरदुरी टिमटिमाती रोशनी से भी खाली है। अनीस रशीद खान ने अफसाने के महजूब कैनवस में उतरती दर्द भरी उदासी को दादा की नम होती आंखों में सिमो दिया है। यहाँ कल क्या था? जिब्राल्टर में जलती हुई किश्तियां, मुसल्ले पर धरी दुआओं और मुनाजात ने एक आलिशान हुकूमत की बुनियाद डाली। फरिश्तों के परों पर धरी कामरानी की वो बारान रहमत थी जिसकी बूंदाबांदी 800 साल तक जारी थी।
मोबिदे वक्त के अब भी नक्कारे बज रहे थे, फिर पेड़ अपनी जड़ों के साथ रह गए, रिम झिम की बूंदों की पायल का सुर गुम हो गया और नकरई धूप की चादर ओढ़े फल से लदे खजूर के पेड़ अपने माजी की सुनहरी यादों के साथ खस्तगी के मुहिब डर और बेकिनार सी खामोशी के साथ खड़े हैं। दादा की आंखें नम हैं, नई नस्ल इन पेड़ों की तारीख से भी नाबलद है। दादा की आंखें नम हैं, इस्लामी सकाफत की बेघरी के दुख को बेहतरीन असलूब में अफसानचे के कालिब में ढाला गया है और पढ़ने का अंदाज भी खूब है। अल्फाज के ज़ेरो बम का खास ख्याल रखा गया है। कुफ्र तोड़ रुखसाना नाजनीन ने अपने अफसानचा कुफ्र तोड़ में तंबीहुल गाफिलीन को मौजू बनाया है। रोबदार शख्सियत, हिफ्ज़ मराकिब, डिसिप्लिन, तरबियत शादी के टूल्स हैं। यहाँ कुफ्र तोड़ तफजीरी के लिए इस्तेमाल किया गया है। यहाँ 3 नस्लों के 3 किरदारों के जरिया पेश किया गया है। दादा मोहम्मद हुसैन जो कभी किसी स्कूल के मुदर्रिस आला होते थे, वजीर तालीम अनवर खान जो इनके शागिर्द हुआ करते थे, साजिया दादा की पोती जिसने IAS का इम्तिहान पास किया था। दादा की रहनुमाई और तंबीहुल गाफिलीन की छाव में इसकी फिक्र, जहन और शख्सियत की नशोनुमा होती रही और इख्तियारी कामयाबी हासिल करती। अनवर खान की तालिबी के जमाने में मोहम्मद हुसैन के सख्त वीर मिजाज की वजह से उन्हें कुफ्र तोड़ के लक़ब से नवाजा गया था। तरबियत कामयाबी की वो चाट है जिस पर एक डिसिप्लिन साज पूजागर अपनी चाबुक दस्ती और हुनरमंद फिक्री उंगलियों से कामरानी का घड़ा तैयार करता है, फिर इसे जहदो अमल के उम्मीदे आतिशदां में पकने के लिए छोड़ देता है। फिर पर्वतों से ऊपर गुंबदे आसमान से कोसो कजा अपने आगही के नूर और रंग के साथ ख्वाब अमल में रंग भरने के लिए उतरता है। ये तंबीहुल गाफिलीन की ज़रब मिजराब है, शीशाए फरहाद है जो आमिल के कोकनी जज्बे की भट्टी को यकीन का नूर पिलाता है, जहदो अमल के ईंधन फरामद करता है। अफसानचे की बुनत में एक कसा हुआ तसलसल है जो कमान की तरह लचकदार भी है और आज से रिलेट करता है। बात है साहेब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब सर, क्या बात है सर, हक अदा कर दिए भैया आपने। सब मुताला चल रहा है, मुताले की बुनियाद। ऐसा भी मुमकिन है मोहतरम कयूम असद साहब की फिक्री काविश का नतीजा है। मौसूफ जितना अच्छा अफसानचा तख्लीक करते हैं, इससे कहीं बेहतर तबसरे करते हैं। तबसरों में इनका जवाब नहीं। बेशक वाकई सर, ऐसा भी मुमकिन है मोहतरम कयूम असद की फिक्री काविशों का नतीजा है मुकालमाती अंदाज में एक सुलगते हुए माशरे मसाइल पर रोशनी डाली गई। 3 तलाक को 2 तलाक बनाकर तजदीद निकाह के लिए राह हमवार करना अब हमारे माशरे में ऐब नहीं रहा। 3 तलाक के बाद दोबारा बगैर शरई अहकाम की पाबंदी के मियाँ बीवी के साथ रहना, 2 बच्चे भी बगैर शरई अहकाम की पाबंदी के खो जाना, ये शरीयत और मजहब से दूरी का सबब है। मुसन्निफ ने यहाँ मजहब के हवाले से माशरे में पनपते इस कबीर फेल को अपनी फिक्र का मौजू बनाया है। गफलत का धुंध शरई अहकाम पर तारी है, यहाँ दूर होते हुए अपने बेगाने हैं, ताकत ओढ़े अफराद हैं, लान व तान करती पुरानी रवायतें हैं, कुलूब की तरफ लौटती
एक तलाकशुदा की मनाजातें ही ओढ़े सलीमा है, और ऐसे में बदन के आंगन में नाजायज जबर के शोले भड़काता जाहिर। ऐसे में माशरती बेरारवी की मारी सलीमा ओढ़े हुए दिनों के उतरन पहनने के लिए मजबूर है। मुसन्निफ ने बेतौकीरी की इस चलन में लम्हों के आंचल में बंधे 3 तलाक की शरई हैसियत और तजदीद निकाह का सवाल माशरे पर दागा है। ये शरीयत का अमली जिंदगी में नफाज और इनहराफ में गड़े सवालों की फांस है जो अफसानचा में दर आया है। इसकी कराफ्त बहुत कमजोर है। इसका थीम गो के तलाक नहीं है, बल्कि तलाक में होने वाली गेमिक है। अहले हदीस के पास इसका जवाब ये है कि एक ही निशस्त में आप 6 तलाक दे दें तो ये तलाक रजई कहलाएगा, बैन नहीं होगी। क्योंकि नफ्सियाती तौर पर भी बिल्कुल सही है, आदमी रजई देने के बाद पछताता है। जब गुस्सा इसका मुतजलजल हो जाता है तब रुजू की गुंजाइश होती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फिलफौर यकलफ्त होने के लिए राह नहीं निकाली है। इस्लाम ऐन फितरत है। साइकोलॉजी की रोशनी में देखा जा सकता है इस गेमिक को बहुत अच्छी तरह से कराफ्त करना चाहिए था। बहुत सतही तरीके से कराफ्त किया गया है जो काबिल कबूल नहीं है तलाक के कॉन्टेक्स्ट में, जो काबिल कबूल नहीं है तलाक के कॉन्टेक्स्ट में। क्योंकि कयूम असर साहब मशाक कलमकार हैं, इसलिए इखलाकन ये कहना ठीक नहीं है कि इसे इस तरह से कराफ्त नहीं किया गया। लेकिन अदबी एतबार से मैं आज जिस जगह हूँ वहां से ये कहना बहुत सही है कि इसके कराफ्त में बहुत झोल है। जब आप दीन और समाज के कॉन्टेक्स्ट में किसी चीज पर फोकस करते हैं, इसे प्लॉट में लाते हैं, अपने गिरफ्त में लाते हैं और चाहते हैं कि लोग उसे महसूस करें, तो इस्लाम और इसके तकाजों को रोशनी में लाना चाहिए, न कि गेमिक को। तलाक के मामले में जो मौकूफ अहले हदीस का है वही सही है, फितरत के मुताबिक है, आदमी की शख्सियत के मुताबिक इर्तबात करता है। शुक्रिया। वाह, बहुत 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 खूब निसार अंजुम साहब, बहुत चारों तबसरे बहुत खूबसूरत, बहुत खूब, लाजवाब लाजवाब। शुक्रिया जनाब सदर निसार अंजुम साहब। इसके साथ ही हमारा पहला सेशन तमाम हुआ। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे दरमियान इस वक्त डॉक्टर रियाज तौहीदी साहब कश्मीरी मौजूद हैं। मैं आपका इस्तकबाल रखता हूँ। बेहद शुक्रिया जनाब। और अब वक्त ज़ाया किए बगैर दूसरे सेशन का आगाज किया जाता है। मैं जनाब खालिद बशीर साहब तिलगामी को दोबारा आवाज दे रहा हूँ। आप अपना अफसानचा सुनाएं। मैं तमाम बाकी लोगों से गुजारिश करता हूं कि वो अपना माइक बंद कर दें। जब बोलना है तो माइक शुरू करें। बराए मेहरबानी आप खालिद बशीर तिलगामी साहब के अलावा सब अपना माइक बंद कर दें। इंशाल्लाह बहुत अच्छा जो है वो प्रोग्राम हो रहा है। आवाज की डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए बाकी तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि अपना माइक बंद कर दें। जी जनाब खालिद बशीर। अफसानचे का उन्वान है ऑटोग्राफ। मई का महीना था, गर्मी अपने शबाब पर थी, लेकिन अपने पसंदीदा स्टार को देखने का जज्बा गर्मी की शिद्दत पर हावी था। बॉलीवुड के एक फिल्म स्टार की शहर में आमद थी। अखबारात और न्यूज चैनलों में इसके आने का खूब चर्चा था, लिहाजा नेहरू स्टेडियम में तल धरने की जगह नहीं थी। मैं भी जेब में ऑटोग्राफ बुक लिए वहां फिल्म स्टार की आमद का मुंतजिर था। मुकर्रर वक्त से 1 घंटा जायद हो गया था, लेकिन स्टार की आमद नहीं हुई थी। प्यास के मारे मेरे हलक में कांटे पड़ गए थे। पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, लेकिन पानी कहीं दस्तयाब नहीं था। मैदान के आसपास तहफ्फुज़ के नुक्ता नजर से शहरी इंतजामिया ने कोई दुकान लगने ही नहीं दी थी, और स्टेडियम के अंदर खाने पीने का कोई सामान ले जाने की इजाजत नहीं थी। जब प्यास की शिद्दत में मजीद इजाफा हुआ,
तो मैं स्टेडियम से बाहर निकला। बाहर निकलते ही मेरी निगाह एक फौजी पर पड़ी जो अपनी बोतल का पानी पी रहा था। यह देखकर मैं उसके पास पहुंचा और गौर से उसे देखने लगा। इससे पहले कि मैं पानी तलब करता, उसने खुद ही पूछ लिया, क्या पानी चाहिए? मुझे इसके सवाल पर खुशी से ज्यादा हैरत हुई। मैंने इस बात में सर हिलाया। फौजी ने बोतल मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने शुक्रिया के साथ कबूल किया। सैराब होकर बोतल उसे लौटा दी। एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हुए मैंने पूछा, आप यहाँ? जी, आज यहाँ कुछ फौजों की ड्यूटी लगाई गई है। क्योंकि फिल्म स्टार की आमद का कुछ पता नहीं चल रहा था, इसलिए वक्त गुजारने के लिए मैं फौजी से बात करने लगा। आप कहां से हैं? जी, रांची, झारखंड से। घर जाते हैं? मेरा मतलब है कब कब जाते हैं? साल में एक बार छुट्टी मिलती है। बच्चे? हाँ, 3 बेटियां हैं। उनकी याद आती होगी? क्यों नहीं, बहुत याद आती है। लेकिन देश और देशवासियों की रक्षा करना मेरा पहला फर्ज है। यह सुनकर मेरी रगों में देशभक्ति का खून दौड़ने लगा। फिल्म स्टार गया बाढ़ में। मैंने सोचा और जेब में अपनी डायरी निकालकर उसके रूबरू करते हुए कहा, फ्रेंड, ऑटोग्राफ प्लीज। शुक्रिया। वाह, असल हीरो का ऑटोग्राफ। अब अच्छा, मैं बहुत खूब। डॉक्टर अनीस रशीद खान साहब से दरख्वास्त करता हूँ, अपना अफसानचा सुनाएं। बहुत शुक्रिया। मेरा दूसरा अफसानचा जो है उसका उन्वान है साइड बिजनेस। सुबह ही सुबह खान साहब ने सारा मोहल्ला सर पर उठा लिया था, क्योंकि गुज़िश्ता रात कोई उनके दरवाजे पर कुत्ते की लाश डाल गया था। उनकी बीवी अपने पड़ोसियों का नाम लिए बगैर उन्हें कोस रही थी। मोहल्ले के कई लोग आसपास जमा हो गए थे। खान साहब ने करीब खड़े हुए नगर पालिका के एक मेहतर से कहा, देख, मैं तुझे 100 रुपये देता हूं, तू इसे फौरन यहां से ले जा। मेहतर ने फौरन सर हिला दिया और 100 का नोट अपने गंदे से शर्ट की जेब में ठूंस कर कुत्ते की लाश को अपनी 6 पहिया गाड़ी में डाल लिया और उसे लौटता हुआ वहां से ले गया। गांव से बाहर आकर उसने अपनी गाड़ी को कचरे के बड़े से ढेर पर उलट दी। कचरे के साथ कुत्ते की लाश भी कचरे के ढेर में गिर पड़ी थी। उसने गाड़ी को सीधा किया और फिर कुत्ते की लाश को उठाकर वापस अपनी गाड़ी में डालते हुए धीरे से बड़बड़ाया, चल बेटा मोती, आज रात तुझे पंडित जी के दरवाजे पर पहरा देना है। वाह 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 वाह, बहुत खूब। बहुत डॉक्टर साहब, खूब। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। अब और रुखसाना नाज़नीन साहिबा, दरख्वास्त है आप अपना अफसानचा सुनाएं। जी, बहुत शुक्रिया। अफसानचा हाजिर खिदमत है। कुर्बानी। कुर्बानी तो आला नस्ल के बकरों की ही अफजल है जनाब, इसीलिए मैं हमेशा बेऐब और आला नस्ल के बकरों की ही कुर्बानी दिया करता हूँ। जाकिर भाई के लहजे में तफाखुर और रौनक थी। मैं चुप रहा। दूसरे दोस्त उनकी शान में ज़मीन और आसमान के खुलाबे मिलाने लगे। अनवर ने कहा, यार कुर्बानी तो सभी देते हैं। जाकिर भाई का बकरा 30,000 का है तो मेरा भी 20,000 का। मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। इसकी गर्दन बेफख्र से अकड़ी जा रही थी। अरे भाई, कुर्बानी तो सभी देते हैं, मगर फ़र्क होता है ना। अब नवीद भाई की ही मिसाल ले लो। हमेशा ऐसा लाग़िब बकरा खरीद लाते हैं जैसे हड्डियों का पिंजर। बेचारा बकरा भी शर्मसार होता होगा कि इसे कुर्बान किया जा रहा है। जमील के तमस्खराना अंदाज पर सभी बुलंद बांग खै लगाने लगे। ऐसे माहौल में मैं बुत बना खामोशी से ये सोच रहा था कि मुझे 11,000 रुपये में मौलवी शकूर अहमद का बकरा लेना चाहिए या नहीं। शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत बहुत खूब। खूब, बहुत खूब। जी, अब वक्त ज़ाया किए बगैर मैं आवाज़ दे रहा हूँ तय्यूब मसर साहब को, अपना अफसानचा सुनाएं।
قیوم اثر صاحب. شاید وہ لیفٹ ہو گیا ہے مجھے نہیں لگتا ہے, ہے. ہے موجود ہے. نہیں ان کا مائک آف ہے. مائک اچھا، آن کر لیں. میرے افسانے کا عنوان ہے اور آسمان رو پڑا. برا نہ مانو میری لاڈلیوں، میری سانسوں، میری آخرت کے سہاروں، میری آنکھوں کے نور، میری عبادتوں، میری نمازوں. تمہاری ماں کیا چلی گئی، میں دھوکہ کھا گیا. میں نے مقبول بھر کوشش کی تھی، لیکن تمہارے ہاتھوں میں مہندی رچانے کی آرزو ہے، تھک گئی. خوب کھایا، ستایا، مگر ہاتھ نہ بڑھایا، یہاں تک کہ میں بستر پر گر پڑا. قصوروار ہوں تمہارا، گنہگار بھی. جو امیدیں باندھ رکھی تھی وہ مجھ سے پہلے قبر میں اتر پڑی. وہ زیر لب بڑبڑانے لگا. پھر ایک دن، ارے صبح نادیہ آؤ تو دیکھو، ابو کی پنڈلیوں کے بال تک سفید ہو گئے ہیں. گوشت تو بالکل نہیں رہا، صرف ہڈیاں باقی ہیں. اس کی بیٹھی ہوئی بیٹی، جس نے صرف 2.5 مہینے سسرال کے ظلم و ستم کے بیچ گزارے تھے، پاؤں دباتے نم آنکھوں سے ہلکے ہلکے کھانستے ہوئے اپنی دونوں کنواری بہنوں سے گویا ہوئی، اور دونوں بڑی بہن کے سر کو دیکھتے ہوئے کہ ہاں اوڑھنی تھوڑی سی پھٹی ہوئی تھی. جانے کیوں گیلی آنکھوں سے سسکتی مسکراہٹ کو ہونٹوں تلے دبائے جا رہی تھی. بیٹی کی آنکھوں سے پاؤں پر گرنے والے آنسوؤں نے اپنا اثر دکھایا. دھیرے دھیرے باپ نے آنکھیں کھولی، تینوں بیٹیوں کو نظر بھر کے دیکھا. دھیمی آواز میں تینوں کو قریب بلایا. ان کے ماتھے پر اگے چاندی جیسے بالوں کو شفقت بھرا بوسہ دے کر آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، اللہ اکبر، اور روح پرواز ہو. ایک بیٹی باپ کے ماتھے پر اپنا سر رکھے ہوئے، ایک چھاتی پر، دوسری پاؤں پر اپنا ماتھا ٹیکے ہوئے آہستہ آہستہ رونے لگی، تاکہ باپ کی روح دکھی نہ ہو. السلام علیکم. بہت بہت. یہ تھے قیوم اثر صاحب. ناظرین و سامعین، اب وقت ہے تبصروں کا، لیکن حسب دستور جناب صدر کے تاثرات سے پہلے ہمارے درمیان موجود اراکین میں سے جو لوگ اپنے تاثرات پیش کرنا چاہیں ان کو دعوت ہے. اراکین میں سے جو لوگ اپنے تاثرات پیش کرنا چاہیں ان سے درخواست ہے. صدیقی صاحب جی محترم، میں اصل میں میرا کنیکشن ختم ہو گیا تھا، جی وہ پھر میں نے دوبارہ جوائن کیا تو صرف قیوم اثر صاحب کا میں افسانچہ سن سکا. جی اور یہ قیوم صاحب کا یہ افسانچہ جو ہے مجھے بہت پسند ہے. جی یہ میں پہلے بھی پڑھ چکا ہوں. اس میں کہنا چاہیے کہ ایک مجبور باپ کی، اور وہ جو اپنی اولاد کو نیک بنانا چاہتا ہے، اور جن حالات میں جس طریقے سے اپنی بچیوں کی پرورش کی، اور وہ تمام ارمان جو دل میں ہوتے ہیں اولاد کے لیے، ان کی بھرپائی نہ کرنا
या न कर पाना, उसका एहसास उसके अंदर हर वक्त है। और हद ये है कि वो मरते टाइम भी जो है उस बात को नहीं भूल पाता और अपनी बच्चियों से वो इस बात के लिए माफी मांगता है कि मैं तुम्हारे लिए वो नहीं कर सका जो मुझे करना चाहिए था, इसके लिए मुझे माफ कर। और उसके और बेटियों की जो एक मोहब्बत अपने बाप के लिए, अपने माँ बाप के लिए, या बेटियां जो हैं, इसमें असल में दो तीन चीजें दिखाई हैं कयूम साहब ने। एक तो एक इंसान की वो जज्बात, एक माँ बाप की वो जज्बात जो अपनी औलाद के लिए होते हैं, खास तौर से लड़कियों के लिए। और लड़कियों का बेइंतहा अपने बाप से मोहब्बत कि वो तब बावजूद इसके तमाम तर महरूमियों के बाद, तमाम तर अपने कहना चाहिए कि अरमानों को कुचल देने के बाद, और वो शादियां भी नहीं हो पाई उनकी, और बाप जो है वो मौत के मुंह में चला जाता है, उसके बाद उस शफकत से और ऐसे उन बच्चियों का रोना और अपने बाप को करना, ये एक अपना बहुत गहरा तासुर, एक समाज की वो चीज दिखाता है कि जिसका मतलब हम दिन रात जिसका मुशाहिदा करते हैं। और इसको बड़े खूबसूरत अंदाज में कयूम साहब ने इसको पेश किया है। इसके लिए मेरी तरफ से ढेरों मुबारकबाद, बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश। शुक्रिया। अब कुछ सिद्दीकी साहब, वक्त ज़ाया किए बगैर जी मैं एक जी मिनट बोलना रौनक जमाल साहब। माशाल्लाह दूसरे दौर के भी चारों अफसाने बहुत अच्छे थे, और खास तौर से चूंकि खालिद बशीर साहब उभरते हुए अफसानचा निगार हैं और उनका दुखती रग मजमुआ भी आ रहा है, और उन्होंने जो अभी अफसानचा ऑटोग्राफ पढ़ा मुझे बहुत पसंद है, और उन्होंने जो छत्तीसगढ़ उर्दू एकेडमी का चश्मा उर्दू का आलमी अफसानचा नंबर आ रहा है उसके लिए भेजा था। मैं मुबारकबाद देता हूँ खालिद भाई के, आपका वो अफसानचा चश्मा उर्दू के आलमी अफसानचा नंबर में भी मैंने शामिल किया है। थैंक यू सर। और काफी मुझे भी आपका वो अफसानचा पसंद है। रुखसाना Thank you, sir. नाज़रीन साहिबा की भी यानी लाजवाब लगे कुर्बानी के बकरों का जो उन्होंने जिक्र किया। अक्सर ऐसा होता है, हकीकत से बहुत करीब है उनका भी अफसानचा। और डॉक्टर साहब का भी माशाल्लाह अफसानचा मुझे बहुत अच्छा लगा। कयूम असर साहब के तो अफसानचे दिलफरेब और बड़े उम्दा होते हैं, लेकिन जो उनके तफसीरों में मजा आता है अफसानचों में वो काट नहीं नजर आती जो उनके तफसीरों में है। मैं उनके अफसानचों से ज्यादा उनके तफसीरों से महसूस होता हूँ। माशाल्लाह वो यानी 4-6 सत्रों के अफसानचे पर 10-10, 15-15 सत्रों का जो तफसीर और अनवर मिर्जा साहब की बदौलत है सब। जी नहीं, आपके तो जैसा अभी अफसानचों की अलीफ लैला आई है, तफसीरों की भी अलीफ लैला आनी चाहिए, मेरा ऐसा ख्याल है। मैंने भी यही कहा था रौनक भाई, मैंने कयूम भाई से यही कहा था कि आपके तफसीरे आना चाहिए। बिल्कुल, और बिल्कुल। वो एक मतलब अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये आपकी अदब के साथ ज्यादती होगी, मैंने ये कहा। नाइंसाफी भी होगी, और कोई अगर उम्मीदवार कोई तालिब इल्म तफसीरों पे अगर रिसर्च करना चाहे तो मैं समझता हूँ कि अगर वो सिर्फ कयूम असर साहब के तफसीरों पे तो काफी कुछ उसको यानी मवाद मिल सकता है अपने पीएचडी के सीखने को मिलेगा। मिर्जा अनवर साहब पर देखना पड़ेगा। कयूम भाई का ये अफसानचा तो मुझे बहुत पसंद है, बहुत ईमानदारी की बात है, बहुत जबरदस्त। आपने भी बहुत सिराज भाई बहुत अच्छे से रोशनी डाली, बहुत अच्छी गुफ्तगू की आपने असर साहब के अफसानचे पे। चारों अफसानचा निगारों पे मुबारकबाद। सिराज साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। साहब चलिए जी शुक्रिया। और अरकान में से कोई अपनी बात कहना चाहें तो 2 सेकंड का वक्त है। 2-3 सेकंड के बाद में जनाब सदर की तरफ रुख करूंगा। जी हाँ, मैं बोल सकता हूँ क्या? हेलो जी रियाज जी डॉक्टर रियाज तौहीदी साहब जी। दूसरे हाँ, तो पहले मुबारकबाद, क्योंकि दूसरी नशिस्त जो है चल रही है तो सभी अफसानचे मैंने सुने। पहली नशिस्त जो थी उसमें मैच देख रहा था, मैं भूल ही गया था कि यहाँ का प्रोग्राम भी आज है। अच्छा याद आया। तो यहाँ पर हाँ, अब कश्मीर से जो है खालिद बशीर साहब जो है, अब क्या कहें,
पहले तो मुबारकबाद क्योंकि कश्मीर से हैं। थैंक यू। हाँ, तो इसके बाद डॉक्टर साहब के अफसाने जो हम पढ़ते रहते हैं, अनीस साहब की मैं बात कर रहा हूँ, जी जी। और ये जो अपने हाँ ये नाज़रीन साहिबा, रुखसाना नाजरीन साहिबा जी। डॉक्टर साहब का कनेक्शन हेलो आ गए फिर दोबारा। जी जी जी, जी, बोलिए बोलिए। डॉक्टर बोलिए जी। रियाज साहब सुन रहे हैं, बताओ। बोलिए। हाँ, तो यहाँ पर मुबारकबाद मैं पेश करना चाहूँगा निसार उलिम साहब, क्योंकि मैं जब यहाँ पर पेश हाजिर हुआ तो उन्होंने सभी अफसानों पर गुफ्तगू की, तो मुझे भी समझ आ गया कि कौन सा अफसानचों पर कौन सा अफसानचा किस मौजू पर था। तो अच्छे तरीके से उन्होंने बात की। और रेहान साहब भी शायद मौजूद हैं, और जी। इनके जो है सभी के लिए तो मुबारकबाद कि ऐसी महफिल जो सजाते हैं। तो अली साहब के निज़ामत भी ठीक है, तो अब तारीफें ही नहीं करूँगा, थोड़ा बहुत मैं बताऊँगा अफसानों के बारे में भी। सही बात यह है कि खालिद का जो अफसानचा था, सिर्फ इसका मुझे क्लाइमेक्स या पंच लाइन जो थी वो पसंद आई, एक बात। अच्छा, सभी अफसानों से ज्यादा मुझे कुयूम असद साहब का अफसानचा प्लॉट के हिसाब से पसंद आया। अब मसला क्या होता है कि प्रॉब्लम ये दिखने में आई कि हम लोग पहले ही जहन में रखते हैं कि हमारा अफसानचा जो होना चाहिए 3, 4, 5 जुमलों का, ये जहन से निकालिए। आप कोशिश करें कि जो अफसानचा आप लिखना जा रहे हैं वो अगर 10 टूर का 15 या एक इक्तबास हता कि एक पेज पर भी आए, मुकम्मल होना चाहिए, यानी फिक्शनाइज अच्छे तरीके से होना चाहिए। उसमें आप प्रॉब्लम ये हो जाती है, जो कुछ आप कहना चाहते हैं आप सोचते हैं 4-5 ही जुमलों में पेश करना है, तो वो तो गड़बड़ हो जाता है इसके प्लॉट में। तो मसला ये होता है, हम नैरेटिव से ज्यादा यानी बयानिया से ज्यादा बयान पर फोकस करते हैं। एक प्रॉब्लम ये आ जाती है वहां पर, क्योंकि फिक्शन में बयानिया की जो अहमियत है बयान पर उतनी ज्यादा नहीं है। तो जब ये बयान ही हम करते जा रहे हैं तो ये हो गया शोविंग के बजाय टेलिंग वाला मसला। इसमें हमें दिखाना होता है, लेकिन हम सुनाते ही जा रहे हैं, फिर हम डिबेट हो रहे हैं। ये 2-3 चीजें जो मुझे यहाँ पर नजर आई कि मैं ये बात नहीं है कि मैं अल्लाह न करे मैं रिजेक्ट करता हूँ अफसानों को, अपने तरीके से ठीक ठाक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि क्योंकि हम इसमें अफसाना फोरम जो है तो उसमें भी शामिल होते रहते हैं, सभी दोस्त होते हैं या यहाँ पर भी, तो ये इन चीज़ों का भी ख्याल रखें हम, तो इंशाअल्लाह हमारे अफसाने भी वो हम पेश कर सकते हैं। तो बेहद शुक्रिया, चंद बातें आपने यहाँ पर मुझे कहने की इजाज़त दे दी, बस इतना ही मुझे कहना है। शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत अहम बात कही आपने। सुनाने से ज़्यादा दिखाना ज़रूरी है। अब फिर 2 सेकंड का मौका अगर कोई कहना चाहे तो कह सकते हैं, वरना मैं जनाब सदर की तरफ रुख करूँगा। मैं रुख करता हूँ, काफ़ी वक्त हो गया है। अब मैं जनाब सदर से दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपने तासुरात हमारे सामने रखें, पेश करें। जनाब सदर निसार अंजुम साहब। अस्सलाम। ऑटोग्राफ इस्लाम। अफसानचे की क्राफ्ट में जो बात सबसे अहम है वो ये कि वाक़या निगारी को अफसानचा निगारी से अलग रखना चाहिए। यही वो दरमियान की लाइन है, इसे ना इधर ना आने दिया जाए और उसे उधर ना जाने दिया जाए। वाक़या निगारी को अफसानचा निगारी की तरफ नहीं जाना चाहिए। वो बारीक सी दीवार है जो तकसीम करती है, वो ये है कि कारी को किसी हादसा की रिपोर्टिंग ना लगे या किसी वाक़या की रिपोर्ट कार्ड नहीं लगे। वो अफसानचा मुअस्सर हो सकता है
जिसका मुशाहिदा गहरा हो। जितना आदमी वर्सटाइल होगा, जितना आदमी जबानों का जानने वाला होगा, जबान पर दस्तरस रखता होगा, वो बेहतरीन अफसाना निगारी या अफसानचा निगारी कर सकता है, क्योंकि उसे कम लफ्जों में बहुत बड़ी दुनिया को आबाद करना होता है। जैसे ऑटोग्राफ में देखें, बहुत सारी चीजों को हदफ करके भी बहुत कुछ अच्छा लिखा जा सकता था। यहाँ कोई चीज क्लिक नहीं करती है। वाक़या निगारी से अफसानचा निगारी को जो लाइन अलग करती है, इसका पास और लिहाज रखना चाहिए। बात कहने में जितना नैरेटिव जरूरी होता है, उस नैरेटिव को नरेशन बनाना और इसमें वहजत तासीर पैदा करना, ये अफसानचा निगार का काम है। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब आप बहुत सारी जबानों का इल्म रखते हो, या कम अज कम 2 जबानों का इल्म तो आपको रखना चाहिए, क्योंकि लफ्ज की मौजूनियत और पस मंजर से उभरता हुआ मंजर अफसाना निगारी या अफसानचा निगारी में बहुत अहमियत रखता है। बहुत तफसील और बहुत मुख्तसर नहीं होना चाहिए, और होना भी चाहिए। ऑटोग्राफ जिस वाक़े की तरफ निशानदेही कर रहा है, इसको थोड़ा रीराइट कर लेना चाहिए। अफसानचा निगार ये भी देख ले कि इसका थीम क्या है, और वो इस अफसानचे की तफहीम करने में कामयाब रहेगा, क्योंकि हर 2 अफराद की कारकर्दगी हर 2 जगह मुसल्लम है। आप भी किसी शोबे को कमतर या बढ़तर नहीं बता सकते। आज अमिताभ बच्चन है तो इसकी मकबूलियत सकाफती तफरी की वजह से है। एक फौजी वो किरदार नहीं निभा सकता जो किरदार अमिताभ बच्चन निभा सकता है। अमिताभ बच्चन इस फ्रंट पर नहीं लड़ सकता है जिस फ्रंट पर फौजी लड़ सकता है। तो हर शख्स की समाजी जिंदगी में उसकी एक अहमियत है, एक सोशल कंसेप्ट है, वो कि वो भांड भी है तब भी वो एक मैसेज कन्वे करता है। एक फौजी है जो अपने किरदार को किसी मुहाज पर बखूबी निभाता है। साइड बिजनेस, इसमें कुछ जिद्दत है, इस माने में कि इसने पैसे कमाने के जरिया इस कुत्ते की लाश को बनाया है। इसका खराब बहुत ढीला है, लेकिन इसका मौजू और प्लॉट बहुत अच्छा है। इस अफसानचे का सबसे बेहतरीन जुमला यह है, चल बेटा मोती, आज तुझे पंडित जी के दरवाजे पर पहरा देना है। अगर इसको रिवर्स टेक्निक में लिखा जाता तो बड़ा अच्छा होता। इसे माकूस तरीके से लिखने में कुछ नई बात पैदा होती। डॉक्टर अन्नी साहब की, मुझको कहने दिया जाए कि डॉक्टर अन्नी साहब की अफसानवी अदब की उम्र बहुत कम है, लेकिन इसके बावजूद भी इनके अंदर एक पुख्तगी की महक जरूर महसूस होती है। मुझे कभी उम्मीद है कि उर्दू अफसाना और अफसानचों को एक बेहतरीन अफसानेगार मैसर आएगा डॉक्टर अनीस रशीद की शक्ल में। साइड बिजनेस इसलिए भी अहम है कि इसमें खाक रोग का पेशा ही यही है कि गंदगी को साफ करे, लेकिन वो गंदगी इस तरह से भी तजदीद होती है कि वो 100 रुपए का जरिया बनती है। आज दलित कहानी का बड़ा जोर है। मैं समझता हूं कि अफसानचा को भी दलित अफसाना होना चाहिए। माइनॉरिटीज, एसटी, एससी के जो लोग हैं, ये उनकी कहानी है, उनकी विपदा है, उनके मसाइल हैं, उसको भी दर्शाता है, उनको भी ये पेश करता है ये अफसानचा। मैंने इतना खूबसूरत दलित अदब का अफसानचा नहीं पढ़ा। मैं समझता हूँ कि ये दलित लिटरेचर में शुमार किया जाने वाला अफसानचा हो सकता है। कुर्बानी, अफसानचा कुर्बानी में रुखसाना नाजरीन ने इखलास और रयाकारी को मौजू बनाया है। शरई अहकाम की अदायगी में रयाकारी की मजम्मत की गई है और इखलास की अहमियत पर जोर दिया गया है। जानवर खरीद कर इसकी तशहीर करना भी रयाकारी के जुमरे में आता है। अल्लाह के यहाँ सिर्फ वही अमल कबूलियत के शर्त से हमकिनार होता है जो खालिस इसकी रजा के लिए किया जाए। किसी भी अमल की कबूलियत के लिए पहली शर्त यह है
कि वो अमल खालिस अल्लाह के लिए किया गया हो, दूसरी ये कि वो सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आयन मुताबिक हो। इखलास का मतलब है कोई काम खालिस अल्लाह के लिए करना, जबकि रियाकारी का मतलब है अल्लाह को छोड़कर दूसरों को मरूब करना, दिखाने और राहित नजर जाहिर करने के लिए कोई काम किया जाए ताकि वो तारीफ करें, इज्जत अफजाई करें या उनसे कोई और दुनियावी फायदा हासिल हो। इखलास इबादत की रूह है, इसके बगैर सारी इबादतें बेजान हैं, यानी वो अमल जिसमें रियाकारी हो जाया हो जाता है और बंदा इसके अजर व सवाब से महरूम हो जाता है। अल्लाह के पास ऐसे शख्स के लिए कोई अजर नहीं है। कुर्बानी ऐसे ही इखलास भरी नीयत और अमल का तकाजा करता है जिसका बरमला इजहार अब सांचे में बड़ी खूबी से हुआ है। और आसमान रो पड़ा, और आसमान रो पड़ा, और आसमान रो पड़ा। कयूम असर का पिदराना जज्बात पर पूरा अफसानचा है। 3 बेटियों के बाप का दुख ये है तो अपनी बेटियों की शादी ना कर सका, अब कब्र में पैर लटकाए बैठा है। अफसानचा निगार ने एक मजबूर और बेबस बाप का तड़पते मचलते दिल को कागज पर निकाल कर रख दिया है। सांसें मोबिदे वक्त की सूली पर टंगी हैं, बेटियों के सरों पर चांदी के तार उतर आए हैं, ख्वाब मर रहे हैं, आंचल में बंधे उम्मीदों का कवल मुरझा गए हैं। जिस्म की दहलीज से अहदे सबाब सरक आया है। जिस्म के लिए पतझड़ के इस मौसम में भी उम्मीद चुप तोड़ने के इसम के बजाय फिरक कर रही है। बेटियां इंतजार ओढ़े बैठी बैठी बूढ़ी हो रही हैं, लेकिन इस सोजे नेहा और दर्द दिल का दरमा कहाँ है? ये सवाल है जो ज़हनी कसौटी लगाता है। ऐसे में नई ऋतु का प्याम बेबसी को के कतरों की मानंद पलकों पर लरज आते हैं। ये मंजर देखकर एक जज्बमंद बाप का दिल उलटने लगता है। बाप और बेटे की जज्बाती मंजरकशी खारी को अपने हसार में ले लेती है। शुक्रिया। शुक्रिया सदर मोहतरम जनाब निसार अंजुम साहब। अब मैं ज़रा सा भी वक्त ज़ाया किए बगैर इंतहाई अदब व एहतराम के साथ रुख करता हूँ जनाब अनवर मिर्ज़ा साहब की तरफ और दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपने तासुरात से हमें नवाजें। एक मिनट, एक अहम ऐलान है अनवर मिर्ज़ा साहब की हज तशक्कुर से पहले। एक अहम ऐलान ये है कि हमारे रौनक जमाल साहब को जो है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जो है साहित्य अवार्ड जो है से उन्हें नवाजा गया है। और वो उर्दू जबान से ताल्लुक रखने वाले वाहिद जो है शख्स है। तो उनके एजाज में इंशाल्लाह जो है जुमा के रोज 7 बजे उनके एजाज में एक तकरीब रखी गई है ऑनलाइन। तो उसमें आप शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ा काम, तमाम अहबाब से शिरकत की दरख्वास्त है। उनके फन पे, शख्सियत पे जो है बातें की जाएगी, इंशाल्लाह खुलकर बातें की जाएगी इंशाल्लाह। और बहुत बहुत शुक्रिया जुमाल साहब, बहुत रौनक भाई, मैं आपको सारे लोगों के सामने बहुत 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 मुबारकबाद। हालांकि सबसे पहले मुबारकबाद मैंने आपको फंक्शन खत्म होने के बाद दी थी। जी जी सही है। जी तो बहुत बहुत शुक्रिया रियाज भाई। अनवर मिर्ज़ा जुमा के रोज शाम 7 बजे जो है वो जो है इंशाल्लाह रेहान कौसर, ये बहुत बहुत जबरदस्त कदम। वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। आ जाइए, खुश आमदीद।
भेजिए आज, तो कल वो यहाँ कश्मीर के अखबारात में निकलेगी इंशाल्लाह ताला। मुबारकबाद की पोस्ट। जी 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 शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत जी। शुक्रिया। अनवर मिर्जा साहब। अनवर मिर्जा साहब। शुक्रिया सिद्दीकी साहब। अब मैं तमाम हाजरीन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तमाम अफसांचा निगार जो हमारे हैं, खालिद बशीर तिलगामी साहब और डॉक्टर अनीस रशीद खान साहब और रुखसाना नाज़नीन साहिबा और हमारे ग्रुप के अब्दुल अजीज मुबस्सिर कय्यूम असर साहब, मैं आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी के साथ खास तौर पे मोहम्मद अली सिद्दीकी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी तरह अपनी बात के फराइज अंजाम दे रहे हैं, सब आपको पसंद कर रहे हैं। नहीं, बहुत सही इंतखाब है आपका। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सब सिद्दीकी साहब को सब देखना और सुनना पसंद करते हैं, बहुत अच्छी बात है। और हमारे नए सदर जो थे आज के, निसार अंजुम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। उनका कोई स्टडी बोर्ड है। इसके अलावा सिराज अजीम साहब, रौनक जमाल साहब और परवेज अनीस साहब और जो मुझे यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं, उन तमाम हाजरीन का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर रियाज तौहीद साहब भी है नहीं भाई? डॉक्टर रियाज तौहीदी साहब हैं, मुझे कुछ कुछ नाम यहाँ नहीं नजर आ रहे हैं। कोई मसला नहीं है। रियाज तौहीदी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उनका इसलिए भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज उन्होंने अफसांचे के फन के ताल्लुक से बहुत अच्छी बातें कही कि अफसांचे का मतलब ये नहीं है कि आपके जहन में कोई ख्याल आया और आपने गिरते पड़ते उल्टा सीधा कुछ भी लिख के उसको अफसांचा बना दिया। यही बात। वाह वाह। उसमें फनकारी तो होना ही चाहिए, वरना आपके अफसांचे में और अखबार के खबर में क्या फर्क है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत सही, बहुत सही बात। इसीलिए तौहीदी साहब की बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। लोगों को उसको सुनना, ध्यान से सुना होगा तो उस पर अमल करना चाहिए। बहुत अच्छी बातें हैं और हमें उम्मीद है कि तौहीदी साहब आइंदा भी हमारी नशिस्त में आएंगे, कुछ अच्छी बातें बताएंगे। जरूर इंशाल्लाह। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हाजरीन का। इंशाल्लाह। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर अनवर आप सभी मिर्जा साहब। इसी के साथ आज की ये नशस्त यहाँ तमाम होती है। तमाम अराकीन का, हाजरीन का, नाजरीन का, सामईन का शुक्रिया। बहुत खूब। रेहान कौसर साहब बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।